We are taking up fire insurance today. Let's see. I'll share with you the presentation. Yes. So fire is one class where all the basic principles of insurance are applicable. And all of you are aware what are the basic principles of fire insurance, like insurable interest, utmost good faith, proximate cause, and principle of indemnity. This principle of indemnity does have two corollaries, which are also known as the principle of subrogation and principle of contribution. So they are all equally applicable to the fire insurance. At both these stages, means while taking the insurance as well as while settling the claim. Now, as on date, the situation of the fire insurance is like this. This is a scenario when the IRA introduced 3 new products on 1st April 2021. So the market scenario for the fire insurance got changed, because for residential houses and for dwellings, the new policy introduced by IRDA was Bharat Grih Raksha for any sum insured, and all earlier policies were substituted. Only the policies which were subsequently developed by the insurance companies and approved by IRDA are in force. Otherwise, for all purposes, this Bharat Grih Raksha is given by all the general insurance companies of India for residential houses. As far as commercial units are concerned, there are 3 policies in force. One, Bharat Sukshma Udyam Suraksha, Bharat Laghu Udyam Suraksha, and the standard fire and special insurance policy, or special peril insurance policy, we can say. So this is the current scenario where the fire insurance policies are applicable. Now the Bharat Grih Raksha, Bharat Sukshma Udyam and Bharat Laghu Udyam were the 3 policies introduced by the IRDA for all the general insurance companies of India, which are uniformly applicable to all of them, and the terms, conditions, wording, clauses are all similar. The differentiation is only in the pricing and subsequently developed add-on covers. Otherwise, the policies are same, format is same, wordings are same, clauses are same, coverage is same, because these are uniform policies. So the market scenario has changed, but fire is one subject which is covering the wider section of the properties. For example, buildings, plant and machineries, equipment, accessories, furniture fixtures, electrical fittings, goods may be in any shape, for example, raw material, semi-finished, finished goods, either in closed storage or open storage, pipelines present inside or outside, utilities and tanks, and they are all subject matter of fire insurance. So they are all covered under this policy. The only significant aspect is the policy is issued in accordance with their sum insured. So there is a major change in these policies on the basis of sum insured, inbuilt coverage, innovative coverage, because they were totally replaced as compared to the previous policy that was standard fire and special peril policy. So in the insurance parlance, fire means there are 2 to 3 things. That is actual ignition. Fire is purely accidental or fortuitous in origin. And there must be something on fire which ought not be on fire. So when we talk about fire insurance, the standard fire and special peril policy needs actual ignition. For other 2 policies, the definition has been slightly modified in favor of insured.
Because fire is one peril which in scientific language can be told as self-sustaining process of rapid oxidation of a fuel which produces heat and light. This is the proper definition of the fire. But the components of fire are fuel, oxygen and temperature. So all these three things have to be there. Then only it is converted into the fire. As far as properties of the subject matter of fire is concerned, it could be anything. For example, solids, liquids, vapors and gases. If we talk about solids, it can include woods, fabric, synthetic material, packaging material, papers. Anything or everything is susceptible to the fire. Because in liquids also you will find variety of subject matters like flaming liquids, soaked rags, cottons, cellulose. Yeah, these are all part of the liquids which can be covered under the fire insurance policy. So fire and its meaning under the fire insurance not only cover the property which is damaged by the fire, but also cover the damages caused due to fire extinguishing process. Try to understand my sentence. Fire does not only cover the direct loss caused to the property or machinery, but it also covers the losses which are caused due to extinguishing process. For example, water damages in extinguishing fire, property demolished by fire brigade, damages done by firemen in executing their duties, losses incurred by insured in attempting to check the progress of fire to save property, or damages to property during removal from a burning building, or damages due to falling of walls as a result of fire. So once there is a fire, a variety of reasons could be there for loss or damages. Even the smoke damage could be there, water damage could be there. All these are part of the losses under the fire insurance policy. When you are receiving a fire insurance proposal from any of your customers, the risk of the fire is classified on the basis of these components or these factors which are affecting the risk. Because the underwriter, when evaluating your proposal form, will consider all these aspects, then only he will accept or decline the proposal, and if it is accepted, he will rate the proposal. Because these are the major components of the fire insurance proposal. For example, construction of a structure, occupancy, nature of flooring, height, floor and wall opening, exposure, lighting, heating and power, place or situation, protection and time of loss. Now take example of anything. Say for example, place or situation. Now how this can impact the fire insurance proposal? This can impact in the way, suppose the commercial unit is in such a situation or such a place where even the fire brigade cannot enter. So obviously the risk is higher. So this is to be considered at the time of considering the proposal. Underwriter can take the measures, or you can say appropriate measures, for evaluation of risk. Nature of flooring. How much floors are there on the building where the commercial unit is running? What kind of occupancy is there? What kind of business is there? Does it relate to cement, to wood, to carpet, to garments, to shoes? What kind of occupancy is there? Because proposal will be rated accordingly. So all these factors are important while considering a proposal for fire insurance. Now since RD has introduced these two policies, so
They have simplified and they have taken the steps in favor of insured, that the insured must understand the language of the policy. It should not be complex in nature. Secondly, policy does not provide complete coverage. So that coverage is complete now. I think all of you are comfortable in English, or do you want me to speak in both Hindi and English? Okay. Okay. सो IRDA ने भी कस्टमर की प्रायोरिटीज को टॉप पे रखा, क्योंकि द अल्टीमेट यूजर इज कस्टमर। अगर उसको पॉलिसी समझ नहीं आ रही है, वो कवरेज नहीं समझ पा रहा है, या उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि पॉलिसी किस पर्पज के लिए है, तो उस इंश्योरेंस का कोई मायने नहीं है। तो IRDA टुक एन इनिशिएटिव कि पॉलिसी को सिंप्लीफाई किया जाए, बिकॉज द अर्लियर पॉलिसी वाज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, प्लस इसके कवरेज को बढ़ाया जाए। अब किसी पॉलिसी का कवरेज को बढ़ाया जाए, दिस इज वेरी टेक्निकल टर्म। कैसे कवरेज को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे उसमें? तो पॉलिसी का कवरेज बढ़ाने का एक तरीका होता है कि जो जो पेरिल्स जो कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और एक्सक्लूडेड है, उनको या तो इंश्योरेंस कंपनीज एड ऑन कवर्स बना देती हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर के कवर कर लेती हैं, और या जो पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको और ऐड कर लेती हैं। लेकिन यहाँ जो पॉलिसी का कवरेज बढ़ाया गया, वो IRDA ने इस तरीके से बढ़ाया कि पिछली पॉलिसी में जो पेरिल से भी ज़्यादा एड ऑन कवर थे, पेरिल से भी ज़्यादा एड ऑन कवर थे, यानी कि इंश्योर्ड पेरिल हैं 12, एड ऑन कवर्स हैं 15। तो IRDA को ये फील हुआ, रियलाइज हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने सर्वे किया कि मेजर रिस्क तो इसमें से एक्सक्लूडेड है, जिनको इंश्योरेंस कंपनी कवर तो कर रही है लेकिन एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर के कवर कर रही है। तो मेजर एड ऑन कवर्स को उन्होंने पॉलिसी के इनबिल्ट कवरेज में मर्ज कर दिया, यानी दीज आर इंक्लूडेड एज बेसिक कवरेज ऑफ द पॉलिसी विदाउट एनी एडिशनल प्रीमियम। ऑब्वियसली इसका बेनिफिट किसको मिला? पॉलिसी होल्डर को मिला। कुछ चीजें उन्होंने ऐसी भी ऑब्जर्व की कि जिनकी वजह से पॉलिसी की मिससेलिंग हो रही थी। अब ये मिससेलिंग वाला पॉइंट बहुत खतरनाक था, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज था। IRDA being a regulatory body, controlling body, it still failure to control the mis-selling of the insurance in India. But they are taking the steps. तो उन्होंने एक स्टेप ये लिया कि जो फायर पॉलिसी है, इसमें पहले से 2 सेट ऑफ पेरिल ऐसे चले आ रहे हैं जिनको कि इंश्योरेंस कंपनी को राइट है कि वो एक्सक्लूड कर दे, और वो ऑप्शन इंश्योर्ड को दिया हुआ है कि इंश्योर्ड अगर ऑप्ट करना चाहे एक्सक्लूड कर सकता है और उसके लिए प्रीमियम में छूट मिल जाएगी। तो ये ऑप्शन तो एक्सरसाइज करना था इंश्योर्ड को, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों ने उसको कैसे मिसयूज किया कि हम आपका प्रीमियम कम कर देंगे और साथ ही दोनों सेट ऑफ पेरिल्स उसमें से एक्सक्लूड कर दिए। अब कुछ बताते थे, कुछ नहीं बताते थे, लेकिन ये जो सेट ऑफ पेरिल्स थे दोनों बड़े इंपॉर्टेंट थे और हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी आज भी डिसकंटिन्यू नहीं हुई है, दैट पॉलिसी इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और उसमें आज भी ये ऑप्शन है कि आप STFI और RSND सेट ऑफ पेरिल्स को एक्सक्लूड कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो ये जो दोनों सेट ऑफ पेरिल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजर लॉसेज अंडर फायर पॉलिसी इन्हीं की वजह से होते हैं। अगर आप इनको डिफाइंड टर्म में देखेंगे, दीज आर कॉल्ड एज राइट स्ट्राइक एंड मैलिशियस डैमेज। इन वन सेट ऑफ पेरिल देयर आर 3 डिफरेंट रिस्क एंड विच आर वेरी कॉमन। राइट्स यानी दंगे, स्ट्राइक्स यानी हड़ताल, मैलिशियस डैमेज यानी दुर्भावनापूर्ण कृत्य। तो मेजर लॉसेस तो इनकी वजह से होते हैं। दूसरा सेट ऑफ पेरिल इनसे भी बड़ा है, दैट STFI मीन्स स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड एंड इनंडेशन। अब ये 4 वर्ड कहने से भी वो सेट पूरा नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे साइक्लोन है, हरिकेन है, ये भी उसके पार्ट। तो स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड, इनंडेशन, साइक्लोन, हरिकेन, टोर्नेडो,
ये सब चीज़ें डिवाइन पेरिल्स में आती हैं, एक्ट ऑफ गॉड कहलाती हैं, नेचुरल पेरिल्स हैं। लेकिन जब भी इनसे लॉसेज होते हैं तो मेजर लॉसेज होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लड है या साइक्लोन है, अगर आएगा बाई द वे तो किसी इंडिविजुअल इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। वो पूरे उस एरिया को डैमेज करेगा। जिस लोकेलिटी में आया है उस सारे एरिया पे इम्पैक्ट डालेगा। आप इंश्योर्ड हैं या नहीं, इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा, बट द अमाउंट ऑफ लॉस वुड बी सीवियर, ह्यूज। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने ये सेट ऑफ पेरिल पॉलिसी में से एक्सक्लूड कर दिया है तो इंश्योर्ड को उस पॉलिसी का लेना ना लेना बराबर हो गया, क्योंकि जब ये एक्सक्लूजन है, पॉलिसी में से एक्सक्लूड किया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने तो क्लेम देना नहीं है, चाहे आपका फ्लड से लॉस हो या साइक्लोन से लॉस हो। तो दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय द रेगुलेटरी बॉडी दैट दिस इज अ काइंड ऑफ मिस सेलिंग, इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, and that has been stopped immediately, because under these two policies there's a complete ban on excluding any peril out of the covered 14s. No insurance company can exclude, and there is no clarity of coverage. Previous policy में clarity of coverage भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? आपको और मेरे को ये समझ बहुत दिनों में, बहुत वर्षों बाद आता है कि पॉलिसी के कवरेज के साथ कुछ और एडिशनल रिस्क भी कवर करानी हो तो उसमें एडवांस और राइडर नाम की चीज़ भी होती है। तो वो जो चीज़ें हैं वो बेसिक पॉलिसी के साथ तो मिलती नहीं। ऑप्शन अगर आपने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो मुझे तो पता ही नहीं आपके पास क्या क्या एड ऑन, क्या क्या राइडर है। और नॉर्मली यही होता है, इंश्योरेंस कंपनी जब अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करती हैं तो बहुत कम लोग एड ऑन कवर्स और राइडर्स के बारे में बात करते हैं, वरना बेसिक पॉलिसी सेल कर देते हैं। जबकि उनके पास बहुत कुछ और एक्स्ट्रा होता है सेल करने को, जिससे कि वो एडिशनल प्रीमियम भी ले सकते हैं। लेकिन या तो उनका खुद का लैक ऑफ नॉलेज होता है जिसकी वजह से वो सेल नहीं कर पाते, या उनकी इतनी कन्विंसिंग पावर नहीं होती है कि वो कस्टमर को कह सकें कि हमारे पास ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है जो इस पॉलिसी के साथ अवेलेबल है, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ये ले सकते हैं। तो वो क्लैरिटी ऑफ कवरेज भी नहीं है, प्लस एक स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ सम इंश्योर्ड भी डिसाइड किया गया है। क्योंकि अगर आप मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई बिल्डिंग है, अब आपके सामने समस्या ये है, आपको इंश्योरेंस की ABCD नहीं आती, आपके सामने समस्या है कि इस बिल्डिंग का प्रोटेक्शन से के लिहाज से, क्योंकि ये एरिया रिस्की है जहाँ पर ये बिल्डिंग है, कोई भी नेचुरल पेरिल यानी फ्लड या साइक्लोन या कोई टॉर्नेडो आ सकता है, उसको डैमेज, अर्थक्वेक अगर आ सकता है उसको डैमेज कर सकता है, तो आप उसका इंश्योरेंस तो चाहते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसका इंश्योरेंस किस बेसिस पे कराया जाए। तो आपके सामने क्या ऑप्शन होंगे? परचेज वैल्यू पर कराऊँ, मार्केट वैल्यू पर कराऊँ, बुक वैल्यू पर कराऊँ, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर कराऊँ, रीस्टेटमेंट वैल्यू पर कराऊँ, क्या कौन सा एप्रोप्रिएट है? और उसका कंपैरिजन आप कर भी नहीं पाते। ये सारी समस्या वर्षों से चली आ रही है, सिंस बिगनिंग। और बहुत सारे इंश्योरेंस को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी, वो भी जो वैल्यू इंश्योर ने बता दी उस पर बीमा कर दिया। आपने 4 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 20 लाख की खरीदी है, आप उसको 20 लाख का ही बीमा कराए जा रहे हैं 4 साल से। इज इट एप्रोप्रिएट? क्या वो 20 साल की रहेगी, 20 लाख की रहेगी 4 साल से? उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए उसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न डिसाइड किया गया कि देयर हैज टू बी सम मेथड ऑफ डिसाइडिंग द करेक्ट सम इंश्योर्ड। वो इसलिए भी जरूरी था कि फायर पॉलिसी सब्जेक्ट टू अंडर इंश्योरेंस है, और जहाँ अंडर इंश्योरेंस एप्लीकेबल होता है वहाँ एवरेज क्लॉज कदर अप्लाई होता है क्लेम के टाइम पर कि इंश्योर्ड हैड टू सफर लॉस ऑफ lakhs of rupees or millions of rupees. So ultimately, who is the loser? Not the insurance company. It is the customer. It is the insured. It is the policy holder. तो सारे स्टेप्स जो भी IRD ने लिए, they are all in favor of the policy holders. अब उनको इसी के साथ साथ एक पैरामीटर रख दिया गया कि इस पॉलिसीज का जो बाइफरकेशन होगा वो सब इंश्योर्ड के हिसाब से होगा।
तो पॉलिसी सम इंश्योर्ड के हिसाब से डिवाइड हो गई, 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई। जितनी भी नई या पुरानी है जो भी मार्केट और केस थे सबको, कमर्शियल यूनिट्स को उसी हिसाब से इंश्योरेंस किया गया। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कि हर इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर की नीड के हिसाब से पैकेज पॉलिसी डेवलप कर लेती है। वो पैकेज पॉलिसी पॉलिसी होल्डर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, क्योंकि डिफरेंट वर्टिकल्स में डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट काइंड ऑफ कवरेज चाहिए। आपकी अगर सीमेंट फैक्ट्री है बेंगलोर में, या मेरी कोई कॉटन फैक्ट्री है भीलवाड़ा में, या XYZ की कोई मेटल फैक्ट्री है जमशेदपुर में, तो हमारी तीनों की रिक्वायरमेंट एक सी तो नहीं हुई ना, अलग अलग हुई ना। तो हमारे प्रोडक्शन की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग हुई है, हमारी वर्किंग की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हुई है, हमारी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हुई। इस हिसाब से हम भी सभी ये चाहेंगे कि कोई ऐसी पॉलिसी डेवलप कर दी जाए जिसमें हमको ये ऑप्शन दिया जाए, ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि जो हमसे रिलेटेड है उसको हम सेलेक्ट कर लें, जो हमसे रिलेटेड नहीं है उसको हम छोड़ दें। आपका जो भी कंपल्सन है कि हमें ये सेक्शन कंपल्सरी लेना है वो हम ले लेंगे, आपका ये कंपल्सन है कि हमें मिनिमम 2 या 3 सेक्शन लेना है वो भी हम ले लेंगे, लेकिन हम सारे ही सेक्शन लें ऐसा तो ज़रूरी नहीं। तो उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियों ने पैकेज पॉलिसीज डेवलप कर दी। अब ये पैकेज पॉलिसीज डिफरेंट वर्टिकल के हिसाब से डेवलप की जाती है। जैसे शॉपकीपर की अलग रिक्वायरमेंट होती है, ऑफिसेज की अलग रिक्वायरमेंट होती है, होटल एंड रेस्टोरेंट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो हर कंपनी इसी तरीके से पैकेज पॉलिसी डेवलप कर देती है और एक कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है कि चूज द सिलेक्शंस एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट the section 1 that is fired, that is compulsory or that is mandatory, but you have to opt this section compulsorily, otherwise policy cannot be given to you. Secondly, there has to be minimum 2 or 3 sections which you have to select. तो कस्टमर ये करता है कि 2-3 जो भी कंपल्सरी सेक्शन है वो ले लिए। कंपल्सरी सेक्शन तो एक ही होता है, लेकिन 2 या 3 सेक्शन लेने जरूरी है तो वो भी ले लीजिए। अब अगर पॉलिसी में 10 सेक्शन है, 12 सेक्शन है, 15 सेक्शन है, तो उन सब पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि उनमें से जो मेरे से रिलेटेड है उसका मैं लूँगा, या जितने मेरी अफोर्डेबिलिटी है उतना मैं लूँगा। दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ सेलिंग द इंश्योरेंस, क्योंकि यह पेपर वर्क भी बचता है, टाइम भी बचता है, प्राइस कॉस्ट भी बचती है, कस्टमर की कन्वीनियंस भी होती है, उसको एक्सपायरी पर बहुत सारा काम नहीं करना होता है, सर 1 शॉट में 1 क्लिक में पॉलिसी रिन्यू हो जाती है। तो दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव और पैकेज पॉलिसीज। तो कंपनियां पॉलिसी बेचती हैं। क्वेश्चन ये है कि अब इन सारी पैकेज पॉलिसीज में जिस कंपनी ने जो भी बनाई, पहला सेक्शन फायर का मैंडेटरी कर दिया गया। वो जो फायर का सेक्शन है वो फायर सेक्शन तो बाई नेम है, लेकिन अब उसमें पॉलिसी कौन सी एप्लीकेबल होगी ये देखना जरूरी हो जाता है। तो वो जो पॉलिसी एप्लीकेबल होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सम इंश्योर्ड, द पैरामीटर ऑफ द सम इंश्योर्ड कि सम इंश्योर्ड कितना है फायर सेक्शन का। अगर वो इतना है कि उन पॉलिसियों की लिमिट को ही क्रॉस कर रहा है तो फिर ये दोनों पॉलिसियाँ नहीं दी जाएंगी। तो उसके लिए लिमिट्स डिसाइड कर दी जाती हैं। जैसे सूक्ष्म उद्यम की 5 करोड़ तक की सम लिमिट है, और लघु उद्यम तक की 5 करोड़ से ऊपर लेकिन 50 करोड़ तक की लिमिट है, और 50 करोड़ से ऊपर स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल की लिमिट है। अगर कोई कस्टमर कॉम्पैक्ट पॉलिसी लेना चाहे 50 करोड़ से ऊपर भी, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स पॉलिसी अवेलेबल है, जो कि कॉम्पैक्ट इन द सेंस कि उसमें फायर भी होता है, FLOP भी होता है, बर्लरी भी होता है, मशीनी बैकग्राउंड भी होता है, MLOP भी होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज भी कवर होते हैं, जिसको EI बोलते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी दी जा रही है इनमें सम इंश्योर्ड इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन। अगर वो 5 करोड़ 20 लाख भी हो गया तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली भारत लघु उद्यम में कन्वर्ट हो जाएगी। आप ये सोचते हैं कि हम स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी को 5 करोड़ या 6 करोड़ के सम इंश्योर्ड के लिए दे दें आज के रेट में, तो आप नहीं दे सकते। दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मोर देन 50 करोड़ सम इंश्योर्ड।
आप ये सोच रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स पॉलिसी को आज के रेट में कहीं 10 करोड़ रुपए के लिए दे दें, तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 50 करोड़ रुपीज़ की है। तो ये जो टेक्निकल जार्गन है ये आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको, आप जिस चैनल में हैं वो चैनल इतना वाइड है, वो चैनल इतना नॉलेजेबल है कि जिन लोगों से आपको डील करना पड़ता है, दे आर एक्सपर्ट इन देयर ट्रेड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, आई डोंट से ऑल ऑफ देम, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सपर्ट इन देयर ट्रेड। ब्रोकर्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज ही ये है कि वो कस्टमर को अपनी कंसल्टेशन दें, तभी तो वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम बुक कर पाएंगे। तो जिनसे आप डील करते हैं, या कई बार कस्टमर ही जैसे कॉरपोरेट सेक्टर का है या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का ओनर है, जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से बीमा करा रहा, तो ही में भी एक्सपर्ट इन इंश्योरेंस फील्ड आल्सो कि व्हाट पॉलिसी इज सुटेबल फॉर मी एंड व्हाट कवरेज इज सुटेबल। तो ऐसे कस्टमर्स कई बार आपको ये बता सकते हैं किस पोजीशन में कि हमारी किस लोकेशन पे कितनी सम इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी है जिसको हम फायर इंश्योरेंस में कवर कराना चाहते हैं, तो वहाँ आपको कौन सी सूटेबल पॉलिसी देनी है ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की रिस्क होती है मार्केट में, से फॉर एग्जांपल कोई नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क है, और वो नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क का मतलब ये है कि वहाँ कोई आउटपुट नहीं होता, कोई टर्नओवर नहीं होता, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कोई प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कुछ भी नहीं होता, वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल होटल है, ऑफिस है, शॉप है, हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, होटल में नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं, तभी तो वो इंडस्ट्री रन कर रही है, तभी तो उनकी इनकम हो रही है। तो ये नॉन इंडस्ट्रियल इसलिए कही जा रही है कि इनमें कोई प्रोडक्शन नहीं है। अगर इनमें कोई प्रोडक्शन है तो ये मैन्युफैक्चरिंग रिस्क कहलाती है। अगर कोई स्टोरेज रिस्क है, सिर्फ जहाँ पर कि कोई स्टोर किया जा रहा है, चाहे वो ओपन है, क्लोज्ड है, तो वो स्टोरेज रिस्क हो जाएगी। इसी तरीके से यूटिलिटीज होंगी, टैंक होंगी, they are all insurable under the fire insurance policy. Why? Because this is the coverage of fire insurance policy. अब इसमें क्योंकि ये सारे डिसीजंस IRDA ने इंश्योर के फेवर में लिए, तो 12 से बढ़ा के 14 पेरिल कर दी गई, डिलीशन ऑफ पेरिल बंद कर दिया गया। सम इंश्योर के हिसाब से पैरामीटर हो गया कि कौन सी पॉलिसी किस सम इंश्योर तक देनी है। जैसे सूक्ष्म उद्यम 5 करोड़ तक है, लघु उद्यम 50 करोड़ तक है, उसके ऊपर फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी है। इन दोनों पॉलिसी में कंपल्सरी एक्सेस की लिमिट भी फिक्स कर दी गई। जैसे सूक्ष्म उद्यम की 5,000 रुपये है, लघु उद्यम की 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट है, जो कि मिनिमम 10,000 होगी। टेररिज्म के केस में थोड़ी डिफर कर देगी, क्योंकि टेररिज्म का जो प्रीमियम है या जो कवरेज है या जो पॉलिसी इशुएंस है, दैट इज गवर्न्ड बाय द टेररिज्म पूल। तो यहाँ डिफरेंस आ सकता है। पॉलिसी का मिनिमम प्रीमियम सूक्ष्म उद्यम का 500 प्लस GST है, और लघु उद्यम का 1000 प्लस GST है। ये कॉमन पैरामीटर्स हैं जो कि सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आज की डेट में एप्लीकेबल हैं। इसी के साथ थोड़ा सा चेंजेस कवरेज में भी किए गए, क्योंकि मैंने जो आपको फायर की डेफिनेशन बताई उसमें कहीं भी ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन नहीं इंक्लूडेड था। लेकिन IRDA ने अब इन दोनों पॉलिसियों में इन तीनों चीज़ों को शामिल कर दिया है विदाउट एनी एडिशनल प्रीमियम। ये जो ओन फर्मेंटेशन या नेचुरल हीटिंग या स्पॉन्टेनियस कंबशन का प्रोसेस है, इसमें इमीडिएटली इग्निशन नहीं आती, फ्लेम नहीं आती, लेकिन ये है अपने आप में इतने बड़े पेरिल के ये जला के राख कर सकते हैं। तो इनको अब फायर की डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया विदाउट एनी एडिशनल प्रीमियम, और इनसे अगर लॉस होगा तो वो भी पॉलिसी में कवर्ड होगा। इसी तरीके से बुश फायर की डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया, उसमें भी फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर को कवर कर लिया गया है। ये बुश फायर और जंगल फायर को इसलिए भी कवर करने पड़े कि अगर आप कहीं सोच देखेंगे प्रैक्टिकल सीनरी हो तो आपको पता लगेगा कि बुश फायर से तो लॉसेज हो ही नहीं रहे या नील के बराबर है, लेकिन फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर से होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज अब लगेंगी वो या लगी हुई हैं, वो भी सब आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी होती हैं। आपको सिटी के बीचों बीच फैक्ट्रियाँ तो लगी नहीं मिलेगी ना, उनकी तो कोई पुरानी चली आ रही है वो चलेगी।
क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में होती हैं और इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादातर सिटी के आउटस्कर्ट्स में होते हैं, जहाँ पर कि उनके एडजॉइनिंग जितने भी होते हैं वो खाली जगह होती हैं, जंगल होती हैं, फॉरेस्ट होती हैं। तो खतरा तो उससे है, फॉरेस्ट फायर, जंगल फायर से। बुश फायर का तो खतरा नहीं है ज़्यादा। बुश फायर तो इन वर्ड ए वेरी रेयर केस, कोई झाड़ी सूख गई है, किसी ने कोई तीली वीली फेंक दी तो उसमें आग लगी है, और जब झाड़ी से कनेक्टेड झाड़ियों में आग लगती लगती फैल गई तो नुकसान कर दिया। दिस ए वेरी रेयर पॉसिबिलिटी। बट फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर इज ए गारंटीड रिस्क, क्योंकि एक बार जंगल में या फॉरेस्ट में आग लगी तो उसको तो बुझाना ही मुश्किल हो जाता है। एंड दैट स्प्रेड्स लाइक ए वाइल्ड फायर। इसी तरीके से एक और चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया कि ये जो इम्पैक्ट डैमेज वाला कवरेज है, इसमें एयरक्राफ्ट डैमेज को मर्ज कर दिया गया, जो कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में आज भी कवर्ड है, इंडिपेंडेंट पेरिल है। लेकिन अब ये इन दोनों पॉलिसियों में इम्पैक्ट डैमेज का पार्ट हो गया। रिस्क आज भी कवर्ड है, लेकिन एज ए पार्ट ऑफ इम्पैक्ट डैमेज, यानी कि एयरक्राफ्ट डैमेज से कोई भी लॉस होता है दैट इज पेबल अंडर दी सूक्ष्म उद्यम एंड लघु उद्यम एल्सो। और इनमें जो नंबर ऑफ पेरिल सेट किए गए उनमें अर्थक्वेक, टेररिज्म और थेफ्ट को शामिल कर लिया गया। अब ये इन्वर्स पेरिल होगा, इनका कोई एडिशनल प्रीमियम इन दोनों पॉलिसियों में नहीं लिया जाएगा। लेकिन थेफ्ट का लिमिटेड कवरेज रहेगा, इन द सेंस कि इन आइसोलेशन अगर कोई चोरी हुई है तो वो कवर नहीं होगी। इन कनेक्शन विद एनी अदर पेरिल अगर कोई लॉस हुआ है और उसके साथ थेफ्ट हुआ तो वो कवर हो जाएगा। दैट मीन्स इफ थेफ्ट इज फॉलोड बाय एनी अदर पेरिल देन इट इज कवर्ड। नॉर्मली आपने देखा होगा कहीं तूफान आता है, बाढ़ आती है, कहीं आग लगती है तो लोग आसपास के लोग या इधर उधर के लोग सामान उठा उठा के चल देते हैं, और जब तक वो लगी रहती है, जब तक वो बाढ़ का पानी भरा रहता है, लोग निकाल के ले जा रहे होते हैं धीरे धीरे करके। तो ये जो थेफ्ट का कवरेज है इसलिए पर्पजली डाला गया कि पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक थेफ्ट की रिस्क कवर रहेगी। अगर थेफ्ट तो हो रही है, लेकिन ये लॉस जो हुआ वो किसी और कारण से हुआ है। वो फ्लड भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, फायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पॉलिसी में 14 पेरिल हो गए कवर्ड। लेकिन वो जो 2 सेट ऑफ पेरिल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अब कंप्लीटली स्टॉप कर दिया गया कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उनको डिलीट नहीं करेगी। मीन्स फ्रॉम द डे वन when the policy is issued, policy covers 14 perils, and all 14 perils will continue till the last date of the policy or expiry date of the policy. यानी अब इन पॉलिसियों में से किसी भी कवरेज के एक्सक्लूजन का ऑप्शन खत्म हो गया। अब आप देखेंगे कि ये 15 एड ऑन कवर थे और आज भी हैं, जो कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में अप्लाई होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पेरिल्स हैं ये उसके कवरेज से भी ज़्यादा हैं। कवरेज 12 पेरिल का है, एड ऑन कवर 15 है। तो इन दोनों पॉलिसियों में इनमें से ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑल एड ऑन कवर्स को शामिल कर लिया गया विदाउट एनी एडिशनल, कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ एज इट इज। अब जैसे फॉरेस्ट फायर है, इम्पैक्ट डैमेज है, ये एज इट इज कवर्ड। स्पॉन्टेनियस कंबशन एज इट इज कवर्ड है फायर में। तो इनको धीरे धीरे करके सारे प्रोजेक्ट को लगभग ख़त्म कर दिया गया और IRD ने ये इंस्ट्रक्शन दिया कंपनीज को कि अपने नए एडिशनल कवर्स अप्रूव करा लें। तो कंपनियों ने अपने नए एड कवर्स अप्रूव करा लिए, क्योंकि ये फायर पॉलिसी बहुत पुरानी है, शुरू से चली आ रही है। अब इसमें कुछ लिमिट्स बेनिफिट्स की थी जो बरसों से कभी रिवाइज ही नहीं। जैसे शुरू से ही पॉलिसी में आर्किटेक्ट, सर्वेयर और कंसल्टिंग इंजीनियर की फीस का 3% ऑफ द क्लेम अमाउंट इन एडिशन टू द एक्चुअल लॉस पेबल था। लेकिन वो लिमिट बहुत पुरानी हो गई क्योंकि अमाउंट बहुत कम है, तो उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया।
रिमूवल ऑफ डेब्रिज 1% ऑफ द क्लेम अमाउंट शुरू से कवर था, उसको बढ़ा के 2% कर दिया। और बाकी एडवांस कवर्स जो कि पॉलिसी में थे, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशंस, अल्टेशंस और एक्सटेंशंस, टेम्परेरी रिमूवल ऑफ स्टॉक्स, कवर फॉर स्पेसिफिक कंटेंट्स, स्टार्टअप एक्सपेंसेस, कॉस्ट कंपेयर्ड बाय म्यूनिसिपल रेगुलेशंस, स्टॉक्स ऑन फ्लोटर बेसिस, स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट, ये सब अब इनबिल्ट कवरेज में आ गए। यहाँ तक कि इनके अलावा एक आध नया भी जोड़ दिया गया, जैसे प्री लोडेड सॉफ्टवेयर। प्री लोडेड सॉफ्टवेयर ये नया है, इसको भी जोड़ दिया गया। और ये जो रिस्क है कि स्टॉक्स ऑन फ्लोटर बेसिस, इसको इनबिल्ट कवरेज में डाल तो दिया गया, लेकिन विद लिमिटेशन। क्योंकि ये जो फ्लोटर कवर है, फ्लोटर कवर कई पॉलिसियों में अलग अलग तरीके से यूज होता है। आपको फायर पॉलिसी में फ्लोटर मिलेगा, आपको हेल्थ पॉलिसी में भी फ्लोटर मिलेगा, और दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। हेल्थ पॉलिसी में फ्लोटर का मतलब है कि एक ही सम इंश्योर्ड की लिमिट उस परिवार के सब लोगों के लिए अप्लाई हो रही है। और यह फायर पॉलिसी में फ्लोटर का मतलब है कि एक ही सम इंश्योर्ड के तहत फायर पॉलिसी में जितनी भी लोकेशंस पर गोडाउन है इंश्योर्ड के, वो सब इसमें कवर हो गए। मीन्स कवर्ड फॉर स्टॉक्स एट मल्टीपल लोकेशंस अंडर वन सम इंश्योर्ड इज कॉल्ड फ्लोटर कवर। तो ये जो फ्लोटर कवर है, ये सूक्ष्म उद्यम में तो विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, लघु उद्यम में इसमें आज भी चार्ज लगेगा, क्योंकि वो 5 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी है। तो जब जैसे ही सम इंश्योर्ड 5 करोड़ को क्रॉस करेगा और फ्लोटर कवरेज ले रखा है, तो उस पर एडिशनल प्रीमियम देना होगा। माना सूक्ष्म उद्यम में फ्री है। डिक्लेरेशन पॉलिसी जरूर बहुत कम पड़ती है, जहाँ वही पड़ती है जहाँ पर कि फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस इन स्टॉक्स हो। अगर है तो डिक्लेरेशन करा लेना चाहिए। उसमें जो इंश्योर की ड्यूटी हो जाती है कि मंथली डिक्लेरेशन इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करता रहे, जिससे इंश्योरेंस कंपनी को ये पता रहे कि वो कितने अमाउंट की रिस्क पर है। फॉर एग्जांपल, मेरी फैक्ट्री में या मेरे स्टॉक में आज की 1 करोड़ का स्टॉक है, मैंने पॉलिसी तो 1 करोड़ की ली हुई है, लेकिन 3 महीने बाद वहाँ से 20 लाख का स्टॉक बचा था। मैंने डिक्लेयर करके, यानी इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेरेशन सबमिट करके बता दिया कि स्टॉक वैल्यू 20 लाख रुपये, और बाई चांस नेक्स्ट डे आग लग गई, तो इंश्योरेंस कंपनी की कंफर्ट जोन में, आपको पता है कि डिक्लेरेशन हमारे पास 20 लाख का आया हुआ है, तो 20 लाख का ही स्टॉक है, उनकी रिस्क 20 लाख हो गई। तो ये इसका बेनिफिट होता है, दोनों को देता है, क्योंकि जितने की स्टॉक उतना ही रिस्क होगा। ऐसा तो हो नहीं सके स्टॉक 20 लाख का हो और इंश्योर्ड को 1 करोड़ का रिस्क हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं। तो अब ये डिसाइड हो गया कि चाहे बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराइए, प्लांट और मशीनरी का इंश्योरेंस कराइए, फर्नीचर फिक्सर्स का इंश्योरेंस कराइए, ये जितनी भी तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, सबका इंश्योरेंस केवल रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही होगा। लेकिन ये फंडा स्टॉक्स या गुड्स पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि गुड्स जो होता है वो डिफरेंट नेचर का होता है, और डिफरेंट स्टेजेस पे उसका नाम भी चेंज होता है। मान लिया कि मेरी कोई टेक्सटाइल मिल जाए, तो मेरी टेक्सटाइल मिल में मेरा जो रॉ मटेरियल होगा, जिससे कि धागा बनाया जाएगा, उसकी कॉस्ट अलग होगी, उसको मैं लैंडेड कॉस्ट पर बीमा कराऊंगा। स्टॉक एंड प्रोसेस, धागा बन रहा है, मशीन में चल रहा है, उसमें मेरी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई, तो वो इनपुट कॉस्ट पर बीमा हो जाएगा। फिनिश्ड स्टॉक, मेरा धागा क्या कपड़ा ही बन गया पूरा कंप्लीट थान निकल के आ गया, तो मेरी उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। तो द मोमेंट दिस गुड्स चेंजेस इट्स शेप, द एक्स्ट्रा कॉस्ट इज इनकर्ड, सो दैट सम इंश्योर्ड शुड बी ऑन दैट वैल्यू। ये भी जरूरी नहीं है कि आप लैंडेड कॉस्ट पर ही सारे स्टॉक का बीमा कराएं। स्टॉक जिस जिस कैटेगरी का है उस पर कराइए। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी के केस में ये हार्ड एंड फास्ट है कि आपको रजिस्टर्ड एंड वैल्यू पर ही बीमा कराना होगा, और वो प्रॉपर्टी इज डिफाइंड है, जिसमें केवल बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्सर्स और फिटिंग शामिल है। अगर कोई प्रीशियस आइटम है, जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स है या बुलियन है या इनसेट है, तो उनको एग्रीड वैल्यू बेसिस पर बीमा कराया जा सकता है।
एग्रीड वैल्यू के मायने होते हैं कि वो वैल्यू जो कि इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एग्रीड है। ये नॉर्मली या तो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट से एग्री की जाती है या इनवॉइस के बेसिस पर। जैसे मान लीजिए कोई प्रीशियस स्टोन है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या पता कि उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन अगर आपने उसका कोई वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ले रखा है या कोई उसका इनवॉइस है जितने में खरीदा है आपने, दैट वुड बी द बेसिस टू डिसाइड द सम इंश्योर्ड एंड दैट इज कॉल्ड एग्रीड वैल्यू बेसिस। लेकिन प्रॉपर्टी में ये हार्ड एंड फास्ट है कि रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही बीमा होगा। अब रीस्टेटमेंट वैल्यू क्या है इसको बेटर तरीके से समझना चाहिए। तो रीस्टेटमेंट वैल्यू उसको कहते हैं जो कि करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू है। चाहे कोई मशीनरी है, अब आपका मान लिया मार्बल का बिजनेस है और मार्बल का आपने कटर अपने यहाँ लगाया हुआ है और कटर की 5 करोड़ की वैल्यू है और 5 करोड़ में आपने वो 3 साल पहले खरीदा था। आज उसकी वैल्यू क्या है? कम हुई कि ज़्यादा हुई? मान लिया वो एक ऐसी रेयर मशीन है जो बहुत कम मैन्युफैक्चर्स होती हैं, तो ऐसी मशीनरीज की नॉर्मली कॉस्ट बढ़ती है हर साल। जो मशीन आपने 5 करोड़ में 3 साल पहले ली, हो सकता है आज की डेट में उसकी कॉस्ट 6.5 करोड़। अगर आप उसका 5 करोड़ का बीमा कराते जा रहे हैं और उसमें कोई डैमेज हो गया, कोई लॉस हो गया या उसका टोटल फायर हो गया या टोटल लॉस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 करोड़ दे भी देती है वाले क्लेम सेटल करके, तो क्या आपका पूरा लॉस मिल गया? आप उतनी वैल्यू में तो नई मशीन नहीं ले सकते। उसी ब्रांड की, उसी मेक की, उसी मैन्युफैक्चर की अगर आप वही मशीन लेना चाहें, रिप्लेसमेंट करना चाहें, तो आपको 6.5 करोड़ देने पड़ेंगे और वो इंश्योरेंस कंपनी 6.5 करोड़ आपको देगी नहीं, क्योंकि आपका सम इंश्योर्ड 5 करोड़। इसलिए प्रॉपर्टी कैन बी रीस्टेटेड और रिप्लेस्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी को रीस्टेटमेंट वैल्यू कहा जाता है। यह विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन होता है। इसमें बल्कि उस ग्रोथ एस्पेक्ट को या एस्केलेशन एस्पेक्ट को या प्राइस की इंक्रीज के एस्पेक्ट को भी कंसिडर किया जाता है जो कि उस ड्यूरेशन में बढ़ी है। ये बिल्डिंग पर भी लागू है, ये मशीनरीज पर भी लागू है, ये फर्नीचर फिक्सर्स पर भी लागू है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में रिसेप्शन में आपने 10 लाख में फर्नीचर बनवाया था बस आज से 5 साल पहले। अब आप उसी तरीके का या उतना ही डिजाइन का या उसी स्टाइल का फर्नीचर बनवाना चाह रहे हैं दोबारा, तो क्या वो 10 लाख में बन जाएगा? पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं होता? रिपेयर कॉस्ट बढ़ जाती है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स वो अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जिस प्रॉपर्टी का भी हम बीमा कर रहे हैं उसका अंडर इंश्योरेंस नहीं हो जाए। ओवर इंश्योरेंस हो जाए इट्स ओके। ओवर इंश्योरेंस होने में इंश्योर्ड को कोई लॉस नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी ओवर इंश्योरेंस उसकी एस्केलेशन वैल्यू को भी कवर करता है जो कि इंश्योरेंस पीरियड में हुई है। तो आप उस वक्त अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम भी ले रहे हैं ओवर इंश्योरेंस के नाम पर तो भी इट्स ओके। लेकिन अंडर इंश्योरेंस करके उसको आप प्रीमियम कम कर रहे हैं और सिर्फ ये स्थान करके बीमा कर रहे हैं तो आप उसका ज़बरदस्त लॉस कर रहे हैं, क्योंकि फिर उसका इंश्योरेंस कराने का पर्पज ही सॉल्व नहीं। बाई चांस उसको लॉस हो गया तो उसमें फिर जितने प्रोपोर्शन में सम इंश्योर्ड कम है उतने ही प्रोपोर्शन में उसका क्लेम अमाउंट कम हो जाएगा एंड दैट वुड बी अ ग्रेट लॉस टू यू। तो नेवर अंडर इंश्योर्ड। हालांकि एक और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसमें यूज में आती है, वो केवल उस पर लागू होती है जब आपने कोई माल सेल कर दिया हो लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं दे पाया और उससे पहले ही लॉस हो गया। तो इस प्रोसेस में क्योंकि लॉस हुआ है तो इंश्योर्ड तो जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि वो बायर तक तो पहुंचा ही नहीं हुआ। और इंश्योर के पास अगर बीमा पॉलिसी है और वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करता है तो उसको ही विल गेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि जिस वैल्यू पर उसने उसको सेल किया है, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ भी हो, कितनी भी कम हो, विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस।
अब इसमें पॉलिसी में कुछ इनोवेटिव कवर भी शामिल हैं जो कि इनबिल्ट हैं, कोई उनका एडिशनल प्रीमियम नहीं है, ऑटोमेटिक कवर मिलते हैं हर कंपनी के पास, क्योंकि पॉलिसी तो सेम ही है ना, चाहे सूक्ष्म उद्यम दीजिए या लघु उद्यम दीजिए, वर्डिंग, कवरेज, कंटेंट्स, टर्म्स, कंडीशंस और आर सेम। अच्छा, मनी इंश्योरेंस 50,000 का कवर रहेगा, डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस 50,000 का कवर रहेगा, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन या डेटा 5 लाख तक का कवर रहेगा, पर्सनल इफेक्ट्स विजिटर्स के या डायरेक्टर्स के 3 लाख रुपए तक के कवर रहेंगे। 3 लाख का बाइफर्केशन ऐसे होगा, मैक्सिमम 20 पीपल एंड 15,000 पर पर्सन। ये ऑटोमेटिकली कवर्ड हैं। ये बड़ा रेयर फीट है क्योंकि फायर की पॉलिसी में इस तरीके के एक्सटेंशन नहीं मिलेंगे आपको देखिए। लेकिन IRDA ने क्योंकि पॉलिसी को रीडिफाइन किया है, रीडिज़ाइन किया है, तो इनोवेटिव कवर इंट्रोड्यूस किए हैं। इसी तरीके से पॉलिसी में एक और बेनिफिट कस्टमर को डायरेक्टली दिया गया है, और वो बेनिफिट ये है कि अगर सम इंश्योर्ड एग्जैक्ट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, 5% कम है, 10% कम है, 15% कम है, तो इंश्योर्ड शुड नॉट सफर एनी लॉस। 15% up to 15% अंडर इंश्योरेंस कैन बी वेव्ड ऑन बोथ द पॉलिसी, सूक्ष्म उद्यम एज वेल एज लघु उद्यम। तो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इंश्योर्ड को अगर कोई लॉस होता है तो लॉस के टाइम पर जो असेसमेंट सर्वेयर करेगा वो उस वैल्यू को देखेगा जो कि डेट ऑफ लॉस पे थी। यहाँ जिस डेट ऑफ इंश्योरेंस पर जो आपने वैल्यू लिखी है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। डेट ऑफ लॉस की जो वैल्यू है उसको वो असेस करेगा, और अगर वो सम इंश्योर्ड से कम है तो वो उसको सीधा अंडर इंश्योरेंस करार देगा। अब ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि अंडर इंश्योरेंस हुआ है, लेकिन फिर उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन होगा, कितने परसेंट अंडर इंश्योर्ड है, 5%, 10%, 15%, 25%, 30%। हो सकता है इंश्योर ने 50% का बीमा कराया हो, 50% का ना कराया हो, तो इंश्योरेंस कंपनी तो 50% के लिए जिम्मेदार हुई ना, 50% देगी। इट मीन्स अगर अंडर इंश्योरेंस है तो इंश्योर्ड का क्लेम करना ही करना है। IRDA ने रिलीफ ये दिया है कि 15% तक अगर अंडर इंश्योरेंस है तो उसको वेव कर दिया जाएगा, कुछ नहीं काटा जाएगा। दैट विल बी ट्रीटेड एज फुल्ली इंश्योर्ड। लेकिन 15 से अगर 16 भी हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, तो आपको ये ऑप्शन नहीं है कि 15% को तो वेव कर दें और रिमेनिंग को काट दें, फिर आपका सारा कटेगा। ये डिफाइन करता है कि आपने रीस्टेटमेंट वैल्यू पर बीमा कराया ही नहीं। रीस्टेटमेंट वैल्यू में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन 5, 10 और कई बहुत ज़्यादा रेयर केस में होगा तो 15% तक आएगा, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो अगर आपका बीमा रीस्टेटमेंट वैल्यू पर नहीं है, रिप्लेसमेंट वैल्यू पर नहीं है, देन यू हैव टू सफर द लॉस। तो ये सिचुएशन बड़ी क्लियर होगी। अब एक सिचुएशन ये है कि सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने नए एड ऑन कवर इंट्रोड्यूस किए, हमने भी किए और हमारे भी अप्रूव हुए। तो आज की डेट में हमारे पास 8 एड ऑन कवर हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग समझा देता हूँ। जैसे पॉलिसी में एड ऑन कवर मर्ज किए गए पुराने स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी की, उनमें से एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे है स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट। अब स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी का एड ऑन है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के कवर किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है उसकी रिस्क तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी ना, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस पर अप्लाई होता है पॉलिसी पर। किस चीज़ में नहीं होता? मेरी फैक्ट्री में आपका सामान रखा हुआ है तो उसका मालिक मैं तो नहीं होगी, मैं तो सिर्फ कस्टोडियन हूँ, मेरी सिर्फ वो कस्टडी में, मालिक तो आप ही। लेकिन अगर वो मेरे सामान के साथ जल गया या उसका नुकसान हो गया तो क्या मेरी लायबिलिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि वो तो मेरे से लेगा जिसका सामान है। आपका सामान है तो आप तो मेरे से वसूलोगे।
मेरा सामान जल गया, ये मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन आपका सामान जल गया, अब ये भी मेरी प्रॉब्लम हो गई। तो पहले रिस्क स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में कवर नहीं होती थी जब तक कि एड ऑन कवर नहीं लिया। लेकिन अब इसको ऑटोमेटिकली इन दोनों पॉलिसीज में कवर कर दिए गए। और कुछ तो प्रोफेशन ही इस तरीके के होते हैं जिनका कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता ही नहीं सामान में। फॉर एग्जांपल मेरा ड्राई क्लीनर का शॉप है। अब ड्राई क्लीनर की शॉप में मेरा क्या है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लेबर है, काउंटर्स हैं। लेकिन जो जिसकी ड्राई क्लीनिंग होनी है वो तो मेरा नहीं है ना, वो तो कस्टमर्स का है। और वो कस्टमर्स का कोई भी आइटम हो सकता है, सूट है, साड़ी है, ब्लैंकेट है, कारपेट है, कुछ भी हो सकता है। मान लिया मेरी आग लगी तो सामान तो उसका जला, सामान तो मेरा था ही नहीं। तो क्या ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उन सबको कंपनसेशन पे करूं? यस, लीगली आई एम बाउंड। तो अब ये रिस्क इस पॉलिसी में ऑटोमेटिकली कवर होगी, स्टॉक एंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये एड ऑन कवर मर्ज हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मर्ज हो गया। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लिया व्हीकल गैराज, अगर मेरा कोई गैराज चल रहा है व्हीकल का, तो मैं अपनी गाड़ी थोड़ी रिपेयर कर रहा हूँ, कस्टमर्स की गाड़ी रिपेयर होगी। और कस्टमर्स की गाड़ियों में मेरा क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसके मालिक तो वो है, रजिस्ट्रेशन तो उन्हीं के नाम, ओनर तो वो ही रहेगा। मैं तो उस टाइम बीइंग कस्टोडियन हूँ, रिपेयर हुआ उसको वापस दे दिया। लेकिन बाई चांस मेरे यहाँ आग लग गई, या कोई फ्लड आ गया, या कोई साइक्लोन आ गया, सब कुछ मेरे यहाँ ही डैमेज हो गया, देन इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द कंपनसेशन। तो वो रिस्क अब इसमें फायर पॉलिसी में कवर हो जाएगी। यस, एक और ऑप्शन इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है कि उसे किसी भी स्टेज पर अगर ये पता लग जाए कि उसका सम इंश्योर्ड एडिकेट रनिंग पॉलिसी में, तो भी वो डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करके अपने सब इंश्योर्ड को इंक्रीज करा सकता है। ये ऑप्शन उसके पास तब तक अवेलेबल है जब तक कि पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं आया है। क्लेम आने के बाद सम इंश्योर्ड इंक्रीज नहीं होगा, कंपल्सरी एक्सचेंज नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी मैक्सिमम सम इंश्योर्ड तक ही रहेगी, कोई चेंज उसमें नहीं होता। अब आते हैं एड ऑन कवर्स पर। तो हमने 8 एड ऑन कवर फाइल किए, 2 डिफरेंट स्टेजेज में। एड ऑन कवर आप जानते हैं, वो रिस्क जो कि पॉलिसी में इनबिल्ट कवर नहीं है, जिसको एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके कवर कराया जा सकता है। पुराने एड ऑन कवर्स पॉलिसी में सारे मर्ज हो गए तो वो तो शामिल हो गए, इनबिल्ट कवरेज में आ गए। अब हम नई रिस्क क्या प्रपोज करें कि IRDAI उसको अप्रूव कर दे, तो हमने ऐसी 8 रिस्क प्रपोज की। इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन अप टू 50,000, क्लेम प्रिपरेशन कॉस्ट, लॉस ऑफ रेंट, एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट, ये 4 हमारे फर्स्ट लॉट में अप्रूव हुए और 4 एड ऑन कवर सेल के लिए अवेलेबल है। सेकेंड लॉट में हमने 4 और पे कराए, वो हैं एक्सीडेंटल डैमेज कवर, इनवॉलंटरी बेटरमेंट, एक्सपेंसेस फॉर लॉस मिनिमाइजेशन एंड एस्केलेशन क्लॉज। ये 8 एड ऑन कवर हमारे पास अवेलेबल हैं। इनको आप किसी भी समय किसी भी कस्टमर को पॉलिसी के साथ सेल कर सकते हैं। इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम इंडिविजुअल एड ऑन का इंश्योर्ड पे करेगा। तो ये 8 एड ऑन कवर है और ये फायर की 3 पॉलिसीज हैं, जिनमें कि सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी तीनों अवेलेबल हैं। ये फायर इंश्योरेंस का आज की डेट में कवरेज आपके पास अवेलेबल है। अब आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? Yes, my dear, tell me.
किसी को उनका क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह समझ में आया हो तो ज़रा रिपीट करते हैं। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज़ इको। हाँ, यस कम ऑन। करेक्ट। हाँ ठीक है, हाँ, योर पॉइंट इज ओके, बट दिस इज नॉट what IRDA is proposing today is not implemented from retrospective dates. What they have already done, that will continue as it is. If they have given the facility of issuing the residential policy for 10 years, that will continue as it is. There is no change in that policy. और अगर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि उससे पहले जो ड्वेलिंग इंश्योरेंस होता था, दैट वाज फॉर अनलिमिटेड पीरियड, 20 साल, 25 साल, 30 साल। ये तो IRDA ने उसको रेस्ट्रिक्ट किया 10 ईयर्स के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों में बड़े रेयर केस में 15 साल, 20 साल, 25 साल का रिकॉर्ड अवेलेबल हो पाता था, और हमेशा कस्टमर ही लूज करता है बोलते। तो ऐसे केसेस में तो उसको रोकने के लिए IRDA ने सही स्टेप लिया कि 10 साल से ज़्यादा की पॉलिसी इशू नहीं की जाएगी। लेकिन रेजिडेंशियल हाउसेज के केस में 10 साल इज appropriate. So that policy will continue as it is without any modification. और हाँ, इंश्योरेंस कंपनियां ने, हमने भी हमारे पास भी एक और पॉलिसी है जिसको हमने 10 साल से ज़्यादा के लिए अप्रूव करा रखा है। तो वो पॉलिसी हम दे सकते हैं, क्योंकि वो भी IRDA ने अप्रूव की है, उसको हमने सेपरेटली अप्रूव कराया है। वो पॉलिसी दी जा सकती है अगर किसी को चाहिए तो। अदरवाइज ये तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये भारत की रक्षा पॉलिसी तो एज इट इज 10 ईयर्स के लिए। एनी अदर क्वेश्चन? या कंटिन्यू। जी हाँ, एड ऑन कवर कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी जो है ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल हर कंपनी के लिए टर्म्स, कंडीशंस, वर्डिंग, क्लॉजेस सब कुछ सेम है। लेकिन 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन रहेगा, प्राइसिंग पर और एड ऑन कवर पर। प्राइस हर कंपनी की अलग अलग होगी इसी पॉलिसी की, और दूसरे एड ऑन हर कंपनी के अलग अलग होंगे। एड ऑन इसलिए कि मेरी कंपनी ने जो एड ऑन कवर फाइल किया है वो IRDA ने मेरे लिए अप्रूव किया है। उसमें मैंने क्या कवरेज दिया है, क्या प्रीमियम चार्ज किया है, क्या उसको एक्सक्लूजन रखा है, ये मेरा डिज़ाइन है। दूसरी कंपनी ने किस चीज़ के लिए फाइल किया है, कौन से एक्सक्लूजन के लिए किया है, ये उनके डिज़ाइनिंग है। तो एड ऑन कवर हमेशा हर कंपनी के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मोटर का ही अगर कोई एड ऑन कवर की बात करें तो किसी कंपनी के पास 12 एड ऑन कवर है, किसी के पास 15 एड ऑन कवर है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। नंबर भी डिफर करेगा, कवरेज भी डिफर करेगा, प्राइसिंग भी डिफर करेगा, एक्सक्लूजन्स और वर्डिंग्स भी डिफर करेंगे कंपनी टू कंपनी। एड ऑन कैन नेवर बी यूनिफॉर्म। इट्स ओके। ओके, मेल ID चेक कीजिए आप सब लोग अपना, टेस्ट पेपर आ गया है। एनीबॉडी कैन कन्फर्म? आप मिस्टर जावेद खान, आपने क्या रिसेंटली ज्वाइन किया है? तो ट्रांसफर से आपका मेल ID चेंज हुआ है क्या?
फिर तो आया है, देखिए आप मेरे